Hi everyone, I am Jhankar. Welcome back to Euphoric Psych, and today we are starting with chapter 6 learning of class 11 CBSE NCERT psychology. Let's begin with understanding what all this chapter covers. So first we have to understand what is learning and how do different animals learn, like how do humans learn, what are the kinds of learning that only humans can do, what are the methods of learning, what are some learning disabilities, what is skill learning, how one acquires skill, what are the phases in which a skill is acquired or learned by an individual. We're also going to talk about the factors that influence the process of learning. So all of this we're going to cover in today's lecture. Begin with the very first thing, which is the concept of learning. What is learning and what are some features that we need to understand to make our basics clear. Okay, so learning is any relatively permanent change. So any temporary change that happens maybe due to consumption of some drugs or alcohols or a highly induced state, वो learning नहीं कहलाएगा. ठीक है, जो भी relatively permanent changes हो रहे हैं हमारे behavior में या हमारे behavioral potential में produced by experience and practice. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बिहेवियर में दिख रही है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर्स जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है, या ऐसा कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे हम किसी चीज के हाई पे हैं. टाइम्स वी आर वेरी अलर्ट व्हेन वी हैव कंज्यूम्ड कैफीन, और we behave very differently when we have consumed alcohol or we are on any drugs. So all of this is temporary change, so that will not count as learning. So the first thing which we need to understand is that learning is relatively permanent and it involves some kind of experience and practice. To learn anything you need some kind of practice in that particular skill or that particular matter, and it involves a sequence of psychological events. It is an inferred process which is different from performance. What do I mean by all of these things? Let's understand in detail. सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी चीज का जब हम रिपीटेड एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसकी हमें हैबिट होने लग जाती है और वो सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक होने लग जाता है हमारे लिए. सो दैट इज हैबिचुएशन, एंड इसमें हम ये दिस इज ऑटोनॉमस एट वन पॉइंट. व्हाई? बिकॉज it happens automatically. Suppose you're learning how to drive, so initially you'll find some trouble, you'll have to pay constant attention, you have to give it time to learn it properly. But once you have properly learned and once you have enough experience and you are in the habit of doing that, then you don't need to alert while driving. You can maybe pick up some important call, maybe look out for traffic signals, but when you're learning you are just focused on your gear and on your steering wheel. So that is how it differs. With experience, with practice, habituation, the autonomous learning happens. What do I mean by that it involves a sequence of psychological events is कि वो डिफरेंट फेजेस में हो रहा है. सो सपोज अ लिस्ट ऑफ वर्ड इज प्रेजेंटेड टू यू, कोई भी 10 वर्ड्स आपको हमने प्रेजेंट करे, सो इट इज लाइकली कि जो स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स होंगे और लास्ट के 2-3 वर्ड्स होंगे वो आपको ज्यादा याद रहेंगे और बीच वाले शायद आप भूल जाओगे या उस सीक्वेंस में याद नहीं रहेंगे. तो ये सब फेजेस में होता है, एक साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, फेजेस होते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे. एंड इट इज एन इनफर्ड प्रोसेस जो परफॉर्मेंस से डिफरेंट है. परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस किसी भी पर्सन का वो ऑब्जर्व बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है या एक्शन है जिसके बारे में उसने अभी अभी सीखा है. ठीक है, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना दैट लर्न दिस पोम एज योर होमवर्क एंड यू हैव टू रिसाइट इट टुमारो. So what they do is they go back home, they repeatedly say it, their parents help them memorize it, and then next day they recite it to their teacher or their classmates. That is performance. Understand how learning is an inferred process because it is inferred from your performance. When that child recites that poem in his or her school, then only the teacher is able to infer if the child has learned the poem, if they have that knowledge. So I hope this part is clear that what is learning. It is any permanent change in our behavior or our behavioral potential that is produced through some kind of experience and practice,
and it involves some events, psychological events, some phases through which we learn things. It has different methods and it is an inferred process. That means learning is inferred through our performance, right? Once you have learned how to drive, now how good of a driver you are will be inferred from your driving test. Then only you will get a license, right? Let's move to paradigms of learning, which talks about the kinds of learning, and the most popular one is conditioning. तो conditioning दो टाइप की होती है, एक classical conditioning होती है और एक होती है operant conditioning. Let's start with classical conditioning. If you have been in touch of psychology थोड़ा सा भी, तो आपने ये डॉग एंड बेल वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा या आपको पता होगा. Pan Pavlov, and he was interested in understanding the physiology of digestion. How does digestion occur? ठीक है, तो वो ये एक्सपेरिमेंट डॉग्स पे कर रहे थे. Realized at one point that as soon as the food is served, the dog starts salivating, and that is a very common response that happens to us as well. If you are hungry and we are presented with a very delicious dish or some kind of our favorite food, then we start salivating, right? So this is a response to a stimulus. This is the basic that we understand, that this is the kind of stimulus response learning, कि किसी भी stimulus के तरफ हमारा कुछ response होता है. ठीक है. So what happened is, जब food serve हुआ, this is phase 1, जब food serve हुआ तो डॉग ने सैलिवेट किया. तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था, इसमें हमने कुछ नहीं करा. दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द डॉग और ऑफ एनी एनिमल टू सैलिवेट व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद फूड, राइट? तो अनकंडीशनड वो चीज होती है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम वो नेचुरल है, बाय नेचर हो रही है, हमने कुछ नहीं किया उसमें. तो अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको आप ऑफन यूएस से डिनोट करोगे, और उससे एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ कि डॉग ने सैलिवेट करा, उसमें हमने कुछ नहीं किया. ठीक है. उसके बाद एक न्यूट्रल स्टिमुलस लेकर आए पावलोव, और उन्होंने एक बेल रिंग करी. ठीक है. सो बेल रिंग करने पे डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो सैलिवेट कब करता है? जब उसको फूड सर्व होता है. तो फिर सेकेंड फेज में उन्होंने क्या किया कि थोड़े ट्रायल्स करे उन्होंने, और वो क्या करते थे कि बेल बजाते थे और उसके बाद फूड को सर्व करते थे. ठीक है. तो उन्होंने क्या करा, पहले न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया, उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट किया. कंडीशनड क्या चीज है? जो हम चेंज कर रहे हैं. अब ये फूड ऊपर तो अनकंडीशनड था, नीचे कंडीशनड कैसे बन गया? बिकॉज अब ये बेल के बाद आ रहा है, तो हमने उसको किसी चीज के साथ पेयर कर दिया है. अब वो उसकी नेचुरल स्टेट में नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो डॉग जब से बॉर्न हुआ है उसको फूड से पहले बेल बजाई जाती है. So that is not an unconditioned state of the stimulus, right? हमने उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करा है, हमने उसे किसी तरह से कंडीशन करा है. फिर पावलोव ने देखा कि जब उन्होंने कुछ ट्रायल्स करे कि वो हर बार फूड देने से पहले बेल बजाते थे, फिर फूड आता था, फिर डॉग खाता था. ठीक है. फिर जब दोबारा डॉग का मील टाइम होता था, वो वापस बेल बजाते थे, पहले फूड देते थे, डॉग खाता था. तो ऐसे उन्होंने मल्टीपल ट्रायल्स करे. और जो डॉग था इस स्टेज में कब सैलिवेट कर रहा था? जब उसको फूड मिल रहा था. अभी भी वो बेल पे सैलिवेट नहीं कर रहा था. लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद क्या हुआ कि जैसे ही पावलोव ने बेल बजाई, डॉग सैलिवेट करने लगा, क्योंकि उसको ये क्यों मिल गया कि अच्छा इस साउंड के बाद मुझे फूड प्रेजेंट किया जाता है, राइट? तो क्या हुआ, एक कंडीशन स्टिमुलस, अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ आके कंडीशन स्टिमुलस बन गया, क्योंकि हम इसके साथ फूड अभी पेयर नहीं किया, और ये हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया. ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पे कि पहले उसको फूड दे रहे थे तो वो सैलिवेट कर रहा था, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस. फिर बेल बजाई, वो सैलिवेट नहीं कर रहा था. फिर फूड देने से पहले बेल बजाई तो भी वो सैलिवेट कर रहा था, लेकिन वो सैलिवेट फूड पे कर रहा था, तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था. उसके बाद थोड़े ट्रायल्स जब हमने ऐसे करे, हमने बेल बजाई तो डॉग बेल की साउंड पे सैलिवेट करने लग गया. दिस हैपेंस इन स्कूल ऑल्सो. जैसे ही रिसेस का बेल होता है, अगर हमें भूख नहीं भी लग रही होती है, या हमें बाहर जाने का मन नहीं भी होता है, या फिर कुछ भी, सो स्पेशली छोटे बच्चे, दे स्टार्ट सैलिवेटिंग, दे नो इट्स टाइम टू ईट फूड. सो इवन ह्यूमन बीइंग्स आर कंडीशनड इन सच अ मैनर. तो दिस इज व्हाट क्लासिकल कंडीशनिंग इज अबाउट. अब उन्होंने ये किया कैसे? तो ही ऑल्सो मेजर्ड द अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली उन्होंने एक सिंपल सर्जरी करी थी, जहाँ पे उन्होंने जॉ पे एक सर्जरी करी थी, और एक
पाइप को अटैच करा था अलग से जार में, जहाँ पे सैलिवेशन का अमाउंट कैलकुलेट हो रहा था, मतलब मेजर हो रहा था बेसिकली. सो नॉट अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट टू डू ऑन क्यूट डॉग्स, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है. So when you're explaining it in exam, you have to explain it in terms of these. कि when an unconditioned stimulus is presented, unconditioned response आता है. Then when it is paired with a neutral stimulus, after some trials, the conditioned stimulus produces a conditioned response. ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे तो वही सेम फूड पहले अनकंडीशनड था, फिर कंडीशनड हो गया. वही सैलिवेशन पहले अनकंडीशनड थी, फिर यहाँ पे आके कंडीशनड हो गई. तो चीजें नहीं बदल रही हैं, उनका रोल बदल रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन की कैसी लर्निंग हुई है, कैसी कंडीशनिंग हुई है. सो दिस इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग. अब क्या चीजें इसको डिटरमाइन करती हैं ये देखते हैं. सो पहला है टाइम रिलेशंस बिटवीन द स्टिमुलस, कि जो दो स्टिमुलस प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे हमने दो करे थे ना, बेल करी थी और फूड किया था. तो जो टाइम रिलेशंस है स्टिमुलस के बीच में वो कैसे हैं, तो एक आपका आता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग और एक आता है बैकवर्ड. फॉरवर्ड के 3 आते हैं उसके अंदर, साइमल्टेनियस, डिलेड और ट्रेस. सबसे पहले हम साइमल्टेनियस को समझते हैं, ठीक है. साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि कंडीशन स्टिमुलस होता है और अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, हम उसको एक ही साथ प्रेजेंट करते हैं. लेकिन जब हम ये टाइप का कंडीशनिंग करवाते हैं तो उसमें ज्यादा ट्रायल्स हमें करने पड़ते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेल पहले बजाई ना, उसके बाद तो जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस था, जो फूड था, वो प्रेजेंट हुआ. लेकिन साइमल्टेनियस में क्या होता है कि कंडीशनड और अनकंडीशनड एक ही साथ प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें ज्यादा ट्रायल्स लगते हैं. ये वाला प्रोसेस जब फॉलो करते हैं तो इट रिक्वायर्स मोर ट्रायल्स. I'll have to rub a few things. I hope you guys noted it down if you're taking notes. ठीक है. Right. Next is delayed. Delayed is the most common kind. ठीक है, और यहाँ पे भी delayed ही यूज हुई है. Most effective होता है, कम ट्रायल्स में हमें जो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो मिल जाता है. जिसमें होता है कि एक कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. सपोज यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट हुआ और ये कंडीशन स्टिमुलस खत्म होने से पहले ही अनकंडीशन स्टिमुलस आ जाता है, ठीक है. सपोज ये 0 सेकेंड्स पे स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड तक पावलोव ने बेल बजाई, लेकिन उसके 8 सेकेंड पर ही उसने फूड दे दिया, और फिर ये 10th पे ये वाला तो बेल का साउंड खत्म हो गया, लेकिन फूड उसके पास, डॉग के पास है. सो दिस इज डिलेड. ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसमें बहुत कम ट्रायल्स लगते हैं और ये जल्दी कोई भी जो एनिमल या कोई भी बीइंग जल्दी एक्वायर कर लेता है थ्रू दिस मेथड. दिस इज डिलेड कंडीशनिंग. उसके बाद आती है ट्रेस. ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, ट्रेस में होता है कि पहले कंडीशन स्टिमुलस दी, वो आके बिल्कुल खत्म हो गई, उसके बाद अनकंडीशन दी. तो मतलब बेल बजी, 5 सेकंड के लिए बेल बजी, पूरी बेल बंद हो गई, उसके बाद 6 सेकंड पे फूड प्रेजेंट हुआ. समझ रहे हो कि वो ट्रेस कर रहा है उसको. ये भी इट इज सिमिलर टू साइमल्टेनियस, इसमें भी थोड़े ज्यादा ट्रायल्स लगते हैं. उसके बाद एक तुम्हारा बचता है बैकवर्ड कंडीशनिंग. बैकवर्ड कंडीशनिंग बेसिकली होती है पहले अनकंडीशन स्टिमुलस को दे दिया. बैकवर्ड मतलब इसका उल्टा करो ना, कि हम इसमें पहले कंडीशन दे रहे थे फिर अनकंडीशन दे रहे थे. बैकवर्ड में क्या होता है, पहले अनकंडीशन दे के खत्म कर दिया, उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस दिया, ठीक है. तो ये बहुत रेयरली यूज होती है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ही इफेक्टिव होती है, इसके कुछ ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. तो ये था पहला डिटर्मिनेंट कि हमारे जो स्टिमुलस हैं वो कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है. अगर हमें मतलब कितने टाइम इंटरवल पे, किस तरह से हम अपने स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना जल्दी और कितना अच्छे से कंडीशन होगा. उसके बाद दूसरा है टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है. अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारे केस में क्या था, दिस फूड, राइट. अब ये एपिटेटिव होगा तो कंडीशनिंग अच्छी होगी, अवर्सिव होगा तो
कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। कोई चीज एपिटेटिव होती है तो वो हमें प्लेजर देती है, राइट? इफ वी आर सर्व्ड विद अ पिज्जा, विल सैलिवेट, विल वांट टू ईट इट, बट इफ वी आर सर्व्ड विद अ प्लेट ऑफ बॉइल्ड ब्रोकली, वी वोंट बी सैलिवेटिंग टू इट। इनफैक्ट हमें भूख लग रही होगी तो भी हम नहीं खाएंगे। सो दैट इज अवर्सिव फॉर अस, राइट? अवर्सिव अगर हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस अवर्सिव है, अनप्लेजेंट है, कोई बिटर चीज है, कोई पेनफुल चीज है, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस है हमारे लिए, तो उसमें ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा हमारे रिस्पॉन्स को एक्वायर होने में। उसके बाद हमारा लास्ट फैक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज्यादा इंटेंस हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। बाय द वे ये जो सारे डिटर्मिनेंट्स हैं ये अनकंडीशन स्टिमुलस पे ही डिपेंड कर रहे हैं, जो हमने नोट करा पैटर्न, राइट? सो इंटेंसिटी मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा स्टिमुलस होगा उतना जल्दी होगा। सपोज फूड है, उसको ड्राइड चिकन अगर सर्व कर रहे हैं, सो चिकन इज स्टिल यमी फॉर डॉग्स, राइट? लेकिन ड्राइड है तो वो उतना अच्छा फ्रेग्रेंट नहीं होगा, उतनी अच्छी उसकी स्मेल नहीं आ रही होगी। बट इफ यू आर सर्व विद अ डिश दैट लुक्स वेरी डिलिशियस, स्मेल्स हेवनली, सो फिर उसका इंटेंसिटी बढ़ गया स्टिमुलस का। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी हमारे अनकंडीशन स्टिमुलस की, उतने कम हमें ट्रायल्स लगाने पड़ेंगे, उतना कम हमें टाइम लगाना पड़ेगा और कंडीशनिंग जल्दी होगी। आई होप क्लासिकल कंडीशनिंग इज क्लियर। ये बहुत बेसिक्स है साइकोलॉजी के, सो टेक इट वेरी सीरियसली, अभी सीख लो। इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू साइकोलॉजी इन योर बैचलर्स ऑल्सो एंड आपको फर्दर उसमें करियर बिल्ड करना है, तो बैचलर्स में भी फर्स्ट ईयर में यही सब पढ़ने वाले हो, तो अभी से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो अच्छे से, ठीक है? दिस इज फर्स्ट कि एक तो हम क्लासिकली कंडीशन होके लर्निंग होती है, उसने लर्न किया ना, यहाँ पे लर्निंग क्या हुई कि वो बेल के साउंड पे सैलिवेट करने लगा। एक और फिनोमेना भी हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली बिफोर मूविंग ऑन, कि सिमिलर टाइप ऑफ अगर हमारे कंडीशन स्टिमुलस होते हैं तो भी वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है। टेक एन एग्जाम्पल कि किसी के घर पे अगर कोई पेट है, ठीक है, और उनको आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करके देते हो सपोज, सो एवरी टाइम दैट माइक्रोवेव का बीप बीप आवाज जब आती है तो उन्हें खाना सर्व होता है, ठीक है? सो यू विल नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, अगर वो पेट नया आया है, सो आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स यू विल नोटिस कि आप माइक्रोवेव में कुछ भी गर्म कर रहे हो और जितनी भी बार वो आवाज आ रही है वो पेट को लगेगा उसको ही खाना मिल रहा है। या सिमिलर साउंड भी, अगर वैसी ही आवाज किसी और चीज से भी आती है, सिमिलर काइंड ऑफ बीप आता है, तो भी उस पेट को लगेगा कि नाउ द फूड इज गोइंग टू गेट सर्व्ड। तो ये जो सिमिलैरिटी अगर होती है कंडीशन स्टिमुलस में, कुछ सिमिलर हमें ऐसे कंडीशन स्टिमुलस मिलते हैं तो भी हम सेम रिस्पॉन्सेस देखते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है? ये बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में जो बॉक्स यूज हुआ उसको हमने स्किनर बॉक्स बोला। सो बीएफ पहले समझते हैं कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कंडीशनिंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर। तो एज ह्यूमन बीइंग्स या एज एनिमल्स वी ऑपरेट ऑन आवर एनवायरनमेंट, है ना? हम उस पर अडेप्ट करते हैं, हम उससे चीजें सीखते हैं, हम उससे चीजें डिराइव करते हैं। तो एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑपरेट ऑन आवर एनवायरनमेंट। ऑपरेंट्स क्या होते हैं? ऑपरेंट वो बिहेवियर्स होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स वॉलंटरली कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स है मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से कर रहा है और उसके कंट्रोल में होते हैं वो एक्शंस, ठीक है? तो जब हम इसकी कंडीशनिंग को पढ़ते हैं कि हमारे कंट्रोल में जो एक्शंस है वो कैसे कंडीशन होते हैं, उसको हम ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट समझते हैं अगेन। तो बेसिकली बीएफ स्किनर ने क्या करा, एक ऐसे बॉक्स में रैट को रखा, एक लिवर था और यहाँ पे फूड डिस्पेंसर था। तो जब भी ये रैट ये लिवर दबाएगा तो क्या होगा, फूड नीचे आएगा, है ना? सो दिस इज काइंड ऑफ अ रीइंफोर्समेंट। अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड रीइंफोर्समेंट क्या होती है। हम छोटे बच्चों को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू गेट गुड मार्क्स विल गेट यू अ चॉकलेट, finish your homework today, we can go to the park in the evening. If you complete this assignment, you won't have to do tomorrow's homework, right? So these are examples of positive and negative reinforcement जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें बेसिक आइडिया हो गया एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। Yes, so जब भी ये रैट
इस लेवर को प्रेस करेगा, फूड डिस्पेंसर से फूड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने फेज 1 में क्या देखा स्किनर ने कि जब वो रैट को उस बॉक्स में छोड़ा उन्होंने, तो वो एकदम से उसने लिवर प्रेस नहीं कर दिया, है ना। वो ऐसे थोड़ी देर शांत बैठा रहा, उसको जब भूख नहीं लग रही थी, उसको भूख लग रही थी तो वो इधर उधर हाथ पैर मारने लग गया और एक्सीडेंटली उससे लिवर प्रेस होता है और फूड नीचे आ जाता है, एक ऐसे चीज का ब्लॉक या वटेवर नीचे आ जाता है और वो उसको खा लेता है। ठीक है, फिर अब ये एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर उसको याद नहीं रहा एकदम से, तो फिर उसने फिर दोबारा इधर, क्योंकि उसको समझ नहीं आया ना कि उसके लिवर पे हाथ मारने से ये चीज हुई है, तो फिर वो इधर उधर करता रहा। फिर उसने दोबारा एक्सीडेंटली एक्सप्लोर करते करते जब लिवर को हिट किया तो फूड डिस्पेंस हुआ। जब ये हो गया कुछ ट्रायल्स में, तो उस रैट को समझ आ गया कि उसने अपने इन्वायरमेंट पे ऑपरेट किया, एक ऑपरेंट बिहेवियर उसने लर्न किया कि व्हेनेवर, और ये उसका वॉलंटरी एक्शन है, रिमेंबर लिवर प्रेस करना उस रैट का अपनी मर्जी से कर रहा है वो, राइट, और उसके कंट्रोल में है, वो करे या ना करे। ठीक है, तो अब उस रैट को समझ आ गया, उसने ऑपरेट करा अपने एनवायरनमेंट पे, उसको समझ आया कि ये लिवर को प्रेस करने से फूड डिस्पेंस होता है, खाना मिलता है, तो अब व्हेनेवर ही इज हंग्री ही डज दैट। तो इस टाइप से लर्निंग हो गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई, राइट। इतना हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इसके एवरीडे एग्जांपल्स भी देखें कि ये हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई होती है, तो हम देखेंगे कि बच्चे ना, जब छोटे बच्चे कुछ मांगते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि से प्लीज, राइट। और मैं हर कंडीशनिंग में, हर चीज में छोटे बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि These are behaviors we learn from our childhood, from our infancy. ऐसा नहीं है अभी हम behaviors कोई learn नहीं कर सकते, लेकिन जो most common examples हैं वो हम बचपन से करते हुए आते हैं, right? तो अब बच्चे सीख जाते हैं when we tell them कि say please, be polite and then you will get this whatever thing they are asking for. So after a certain number of times they'll learn कि saying please will get them anything. If they say it cutely with puppy eyes and they say please mama get me this, they'll get it. So this is an everyday example of operant conditioning. More are given in your book. You can go through that and you should go through that. Okay. Operant conditioning किन चीजों से determine होती है? मतलब again क्या factors हैं? तो एक तो type of reinforcement कि हम positive दे रहे हैं या negative दे रहे हैं। अब समझना, negative reinforcement का मतलब punishment नहीं होता। Positive reinforcement मतलब कि ये काम करोगे तो ये अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है, कि अच्छे ग्रेड्स लाओगे तो विल गेट यू अ बाइक और विल गेट यू अ न्यू फोन, ऐसा, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, इट इज स्टिल रीइंफोर्समेंट, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपके कोई अच्छे एक्शन को रीइंफोर्स करने के लिए, आपको उस चीज पे बढ़ावा देने के लिए कोई चीज एमिट कर ली जाए जो आपके लिए ही अच्छी है, तो आपको कुछ मिल नहीं रहा। सपोज your teacher says कि if the whole class performs above average on this particular test, you will not have to make the assignment for my subject. तो 50 मार्क्स का टेस्ट है, पूरी क्लास के अगर 35 के ऊपर आ गए सब बच्चों के, तो मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी, you don't have to make an assignment. This is negative reinforcement. ठीक है, बिकॉज तुम्हें लगेगा टेस्ट तो फिर भी देना ही है, अच्छे से दे लेते हैं, असाइनमेंट भी नहीं बनाना पड़ेगा। दैट। अब पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है? पनिशमेंट मीन्स कि किसी बिहेवियर पे हम पनिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इफ यू डोंट डू दिस असाइनमेंट यू विल गेट अ टाइट स्लैप, इफ यू डोंट कंप्लीट दिस वर्क यू विल स्टैंड आउटसाइड द क्लास, इफ यू डोंट डू दिस मॉम वोंट टॉक टू यू। सो ये काइंड ऑफ ऐसे पनिशमेंट हो गया। तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस समझना, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बात तक भी, वरना कि रीइंफोर्समेंट आपके अच्छे बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए ही हो रहा है, जबकि पनिशमेंट का कई बार उल्टा इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कि यू नो जैसे हम बोलते हैं बच्चे ढीठ हो गए हैं, हम उनको पनिश करते रहते हैं, तो वो चीज हो सकती है। बट रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव में एक नई चीज आपको ऑफर करी जा रही है बेसिकली, और नेगेटिव में आपको किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क से ऑफ कर दिया कि ये कर लो तो ये नहीं करना पड़ेगा, और वो टास्क यूजुअली ऐसा होगा जिसको आप ड्रेड करते हो कि मेरे को ये काम नहीं करना, तो आपको वो काम ना करना पड़े इसलिए कुछ बेटर आपको ऑफर कर देंगे। दूसरा आता है नंबर, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर तुम रैट को चीज ऑफर कर रहे हो या डॉग को ऐसे सिचुएशन में चिकन ऑफर कर रहे हो, तो वो क्वालिटी फूड है ना, दैट इज बेटर फूड, राइट।
और अगर तुम ऐसे ही चिकपी ऑफर कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो रीइंफोर्समेंट उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद ट्रायल ज्यादा लगे, या जब वो एब्सोल्युटली ऐसा स्टार्विंग वाली स्टेज में होंगे तो ही वो खाना खाएंगे या वो लिवर को प्रेस करेंगे, तो जब उनको नहीं अच्छी चीज मिल रही है। ये सिमिलर बिहेवियर वी कैन सी कि हम नेगोशिएट करते हैं कि अगर योर पेरेंट्स आर सेइंग कि ओके विल give you permission to go on a trip if you score good in exams, so we start negotiating with them कि no I want to go on this trip and you will buy me a new phone also, so हम वो stakes higher करते हैं ना, हमें quality of reinforcement चाहिए कि मैं मेहनत करूं तो मैं किसी चीज के लिए करूं, मेरा फायदा अच्छा खासा होना चाहिए। तो क्वालिटी और नंबर और अमाउंट भी उन्हीं चीजों से रिलेट कर रहे हैं कि कितना एक बारी में मिल रहा है। अगर एक एक चीज का ब्लॉक आ रहा है उस रैट के लिए तो वो 2-3 बार एक ही बार में प्रेस करने का कोशिश करेगा, या एक ही ब्लॉक आया तो वो एक्सप्लोर कर करके बार बार खाना ढूंढेगा ना, क्योंकि उसका पेट नहीं भरा। एक ही बार में 6 ब्लॉक नीचे आ जाएंगे, उसका पेट भर जाएगा, फिर वो सो जाएगा 6 घंटे, वो एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। और ये कंडीशनिंग होने के लिए उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितने ज्यादा ट्रायल्स होंगे, जितनी ज्यादा बार वो एक्सप्लोर करते करते उस लिवर को हिट करेगा, तभी तो उसको लर्न होगा ना कि ये लिवर हिट करने से खाना आ रहा है। तो इसलिए वो जो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है, वो क्वालिटी जो हम दे रहे हैं रीइंफोर्समेंट की, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत मैटर करेगी कि रीइंफोर्समेंट कितना जल्दी होगा, कितना इफेक्टिव होगा और कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, फिर आता है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो कि हम कैसे कर रहे हैं रीइंफोर्स, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं कि हर आधे घंटे में हम वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या हर एग्जाम, सपोज आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट्स हैं, आफ्टर एवरी एग्जाम इफ यू आर प्रॉमिस्ड वन थिंग कि इन मैथ एग्जाम इफ यू स्कोर गुड यू विल गेट दिस, इन साइंस एग्जाम इफ यू स्कोर गुड यू विल गेट दिस, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया। पार्शियल मतलब कि कोई फिक्स्ड इंटरवल्स नहीं है, बेसिकली इंटरमिटेंट है थोड़ा सा, कि एक सर्टेन पॉइंट पे हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पे नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, बट ये बोल के समझाने वाली चीजें हैं। तो जब कोई चीज पर्टिकुलर इंटरवल पे नहीं हो रही है, उस टाइम पे वो पार्शियल है। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट में रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन का एक फिनोमिना आता है। रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन मीन्स कि जब हम पार्शियली किसी ऑर्गेनिज्म को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो लर्निंग हुई है उससे, जो पार्शियल से लर्निंग हुई है, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, अगर वो रीइंफोर्समेंट कॉन्टिन्यूसली नहीं मिल रही, ऐसा कम होता है कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ये रैट को हर आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में खाना दे रही हूँ, तो ही नोज कि हर 2 घंटे में खाना मिल रहा है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट है कि कभी 2 घंटे में दे रही हूँ, कभी 8 घंटे नहीं दिया, फिर 10 आवर्स नहीं दिया, फिर 1 घंटे में ही दे दिया। तो जो उसका रेजिस्टेंस है उस लर्निंग को लेके, वो और मतलब वो और स्ट्रांग हो जाएगा ना उस चीज को लेके, कि वो लर्निंग उसके अंदर से जाएगी नहीं, उसको समझ आएगा कि फूड के लिए मेरे को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम पार्शियली रीइंफोर्स करते हैं तो रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन ज्यादा होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट में कंपेयर टू अगर हम कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं। ठीक है, तो कम चांसेस होते हैं कि जब फ्यूचर में कभी जाके वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तो वो जो लर्नड बिहेवियर है वो खत्म हो जाए। और डिटर्मिनेंट है डिलेड रीइंफोर्समेंट, मतलब अगर हम डिले करें रीइंफोर्समेंट देने में तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगा। टू गेट 90% or above marks in tomorrow's test, you will get whatever you want, let's say, ठीक है, you will get something you have been eyeing for or you have been asking your parents for। अगर कल के टेस्ट पे तुम्हारा 90% से ऊपर है तुम्हें मिल जाएगा। On the other hand, they say कि if you or offer 2 is if you perform amazingly 90% plus on all your tests, all your assignments and throughout the year तुम्हारा final percentage 90% के ऊपर बन जाएगा, we'll take you to Disneyland, we'll take you whatever your dream destination is। It is more likely कि तुम लोग को immediate वो चाहिए होगा कि ट्रिप के लिए तो बाद में बना ही लेंगे, अभी जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, राइट। तो जब हम रीइंफोर्समेंट में डिले करते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स यही बोल दें कि इफ यू परफॉर्म द एंटायर ईयर बहुत अच्छे से तो तुम्हें ट्रिप पे लेके जाएंगे, नो सेकेंड ऑफर, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि तुम शुरू में 1-2 दिन मेहनत करोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार पूरा साल है, अभी पता नहीं बाद में मना ना कर दे। तो इमीडिएट जो तुम्हें चीजें मिलेंगी तुम तब परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा करोगे।
दिस इज डिलेड रीइंफोर्समेंट. आई होप ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज क्लियर टू यू. अब हमें बस कंडीशनिंग की ही थोड़ी सी और चीजें पढ़नी है, जो क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हम समझते हैं, विच इज reinforcement, extinction, generalization and discrimination, spontaneous recovery. तो ये 4 की लर्निंग प्रोसेसेस हैं. पहले रीइंफोर्समेंट समझते हैं. तो मैं बेसिक तो समझा ना रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. अब कुछ प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है. ठीक है, जैसे खाना चाहिए, राइट? यू नीड क्लोथ्स, यू नीड अ रूफ ओवर योर हेड. ये तुम्हारे मतलब बिल्कुल सर्वाइवल, तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड्स बेसिकली. सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं जो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हमारी लाइफ में अटेन करने में हमको हेल्प करते हैं, जैसे मनी, वेल्थ और प्रेज, ग्रेड्स. ठीक है, तो ये वाली जो चीजें ये हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये मिलती है तो हम प्राइमरीली ज्यादा अच्छे से रीइंफोर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि अगर हम कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट देते हैं तो कैसा होता है, पार्शियल देते हैं तो कैसा होता है. पार्शियल में रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन बढ़ जाता है, कॉन्टिन्यूस में कम रहता है. और एक्सटिंक्शन बेसिकली है क्या, कि अगर एक पॉइंट पे जाके वो रीइंफोर्समेंट बंद हो गई तो तुम्हारा लर्निंग वैसा ही रहेगा. ठीक है, सपोज 5 years of your life your parents have told you if you perform like this certain number के above in your finals you will get this. या तो अगर उन्होंने हर साल ऐसा करा है तो दैट इज कॉन्टिन्यूस, कि तुम्हें हर साल यही टारगेट्स मिले हैं. तो हो सकता है 6th ईयर जब वो रीइंफोर्समेंट हटा ले तो तुम काम करना बंद कर दो. ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें पार्शियली रीइंफोर्स करते आए हैं कि जब उनका मन होता था और तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें कुछ दे दिया, कभी कभी अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ तुम्हें प्रेज नहीं भी किया, गिफ्ट नहीं भी दिलाया, बट तो वो दैट पार्शियल रीइंफोर्स, जब तुम पार्शियली रीइंफोर्स हुए हो ऑल दीज इयर्स, तो फिर तुम में कॉन्टिन्यूसली रहेगा कि ओके एनी डे इफ आई स्कोर गुड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे को प्रेज किया जाएगा या मुझे गिफ्ट मिलेगा. तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए तुम परफॉर्म करते रहोगे, हालांकि वहां पे रीइंफोर्सर नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ बोला नहीं है कि तुम्हें ये मिलेगा. ठीक है, तो एक्सटिंक्शन, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन ऐसे वर्क करता है. उसके बाद आ जाता है जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन. जनरलाइजेशन जो अभी मैंने बोला कि माइक्रोवेव की बीप और किसी और चीज की बीप अगर सेम लगेगी तो उस पर भी वो रिस्पॉन्स आएगा. और डिस्क्रिमिनेशन जब हम दो चीजों में डिस्क्रिमिनेट करके सेम रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जैसे कि वो डॉग, जो आपका पेट डॉग है, वो माइक्रोवेव की बीप पे तो खाने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर घर में म्यूजिक बज रहा है या कोई और टाइप की साउंड है जो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, तो वो उस पर सैलिवेट नहीं करेगा या वो खाने के लिए आपके पास भाग के नहीं आएगा. दिस इज जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, की अगर स्टिमुलस सिमिलर टाइप के स्टिमुलस होते हैं तो रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, और अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं दो स्टिमुलस में तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है. लेट्स अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी नाउ. तो जो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है उसकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, तो हमारे जो हमारा रिस्पॉन्स होता है या हमारी लर्निंग कैसी होती है बेसिकली. ठीक है, तो एक्विजिशन फेज होता है जब हम एक कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को साथ में प्रेजेंट करते हैं. जैसे डॉग को क्या किया था हमने, बेल और फूड साथ में प्रेजेंट किया था, तो उस टाइम उसने लर्न किया, राइट. फिर एक्सटिंक्शन फेज आती है. एक्सटिंक्शन फेज मतलब कि सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जा रहा है. एक्सटिंक्शन फेज मतलब कि सिर्फ बेल प्रेजेंट हो रही थी, फिर फूड हटा लिया था हमने इक्वेशन में से, तो एक बार के लिए डिक्लाइन जाता है. हमने देखा था एक बार उसने फिर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने सैलिवेट ही नहीं किया. फिर ये कुछ ट्रायल्स के लिए हम करते हैं ऐसा, उसके बाद पॉज आ जाता है. पॉज के बाद जब हम देखते हैं, जब हम सिर्फ वो बेल बजा रहे हैं और इनफ नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं, तो वो इवेंचुअली एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है उस रिस्पॉन्स की. फिर वो सैलिवेट करने लगता है बेल की आवाज पे. यहाँ पे नहीं कर रहा था, है ना, यहाँ पे कर रहा था. यहाँ पे डॉग सैलिवेट कर रहा था ना इस एरिया में. क्यों कर रहा था? क्योंकि फूड था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था. यहाँ पे फूड हटा लिया, सिर्फ बेल थी तो नहीं कर रहा था, डिक्लाइन हो गया. अब जब उसके इनफ नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए इस स्टेट में, उसको समझ आ गया कि बेल के बाद फूड मिलता है, तो वो रिकवरी करता है एक पॉज के बाद. पर ये एक्सटिंक्शन हो जाती है. एक्सटिंक्शन, ये डाउन क्यों जा रहा है ग्राफ यहाँ पे? ये डाउन इसलिए जा रहा है क्योंकि देयर इज अ चांस ना कि इवेंचुअली जब हम ये
हटाते जाएंगे। अगर मान लो फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने फूड हटा ही दिया इक्वेशन में से, मैं सिर्फ बेल बजा रही हूँ, तो वो कितने टाइम तक बेल पे सैलिवेट करेगा, राइट? क्योंकि उसको हर बार ही मिल रहा था पहले। अगर उसको हर बार फूड नहीं मिला होता बेल पे, मान लो मैंने एक बार बेल बजाई, खाना दे दिया, दूसरी बार बजाई, उसने सैलिवेट किया, मैंने खाना नहीं दिया, तीसरी बार फिर दे दिया, अगली 2 बार फिर से नहीं दिया, तो एक्सटिंक्शन के चांसेस कम है। क्योंकि उसको लगेगा कि ओके कभी भी खाना मिल सकता है, बेल बजने पे कभी मिलता है खाना, कभी नहीं मिलता, राइट? लेकिन अगर मैंने उसको कॉन्टिन्यूसली 10 बार 10 दिन बेल बजा के खाना दिया, 11वें दिन और 12वें दिन 2 दिन अगर फिर मैंने सिर्फ बेल बजाई खाना नहीं दिया, तो वो 13th डे पे नहीं फिर सैलिवेट करेगा बेल की साउंड पे। समझ रहे हो तुम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे हो रही है? आई होप ये प्रोसेसेस तुम्हें क्लियर है। अब समझते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नाम से समझ आ रहा है, किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को इमिटेट करके, किसी को देख के कोई चीज को समझना। कभी मॉडल भी करते हैं बिहेवियर को, है ना, कि अगर हमारा फेवरेट एक्टर ऐसा कर रहा है या समवन वी रियली लुक अप टू वो ऐसा कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम बहुत सारी चीजें बचपन से ही अपने एल्डर्स को देख के सीखते हैं, तो ये सब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस एल्बर्ट बेंड्यूरा के थे, जिन्होंने एक बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था टू सी कि कैसे हम ऑब्जर्व करके चीजों को सीखते हैं। बेंड्यूरा ने क्या करा कि कुछ बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए और तीनों ग्रुप्स में एक ही मूवी के 3 अलग अलग वर्जन्स को दिखाया, ठीक है? तो जो उनका ग्रुप 1 था उसको उन्होंने दिखाया, उसमें दिखाया कि जो मॉडल है, जो मेन एक्टर, लीड एक्टर है उस मूवी का, वो जब भी टॉयज को बीट करता है तो उसको प्रेज मिलती है, ठीक है? उसको प्रेज मिलती है, उसकी तारीफ करते हैं सब। इन ग्रुप को उसने दिखाया कि जब भी वो जो मॉडल है, मेन एक्टर है, वो जब भी ऐसा वायलेंट या अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है तो उसको डांट पड़ती है। और तीसरे ग्रुप को दिखाया कि जब भी जो हमारा लीड एक्टर है वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई ना डांटता है और ना उसकी तारीफ होती है। ये 3 वर्जन उन्होंने 3 ग्रुप्स को दिखाए और उसके बाद ये तीनों ग्रुप्स को 3 रूम्स में भेजा जहां पे टॉयज पड़े थे और एक बड़ी सी बोबो डॉल, सिमिलर टू जो मूवी में जैसी डॉल दिखाई गई थी वैसी सिमिलर सी डॉल पड़ी थी। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उन्होंने जो देखा वो किया, ठीक है? उन्होंने देखा कि ये डॉल्स को मारने वारने से, अग्रेसिव बिहेवियर बेसिकली दिखाने से तारीफ हो रही है, उन्होंने वैसा किया। देखा था कि डांट पड़ती है या फिर पनिशमेंट मिलती है, तो उन्होंने नहीं मारा डॉल को बिल्कुल भी, दे वर वेरी पेशेंट, उन्होंने अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया। और तीसरा ग्रुप जिन्होंने देखा था कि ना डांट पड़ रही ना कुछ हो रहा, तो उन्होंने ये चीज नॉलेज जैसे ये ऑब्जर्व करा और अपने हिसाब से, मतलब जैसा नॉर्मली बिहेव करना चाहिए वैसा किया। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आया कि नॉलेज तो हम लोग ऑब्जर्व करके अक्वायर कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ड है कि वो बिहेवियर रिवॉर्ड होगा या पनिश होगा, ठीक है? इन सब ने देखा था ना कि इन सब ने ऑब्जर्व किया कि जो लीड एक्टर है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है टुवर्ड्स टॉयज या टुवर्ड्स दैट बोबो डॉल, है ना? तो अब ये बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन वो खुद कैसा करेंगे, वो किस चीज पे डिपेंड हुआ कि उसको रिवॉर्ड मिला, उसको पनिशमेंट मिली या कुछ भी नहीं हुआ। तो दिस वाज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये चीजें बेंड्यूरा ने देखी और ऐसे एक सोशल लर्निंग का थ्योरी डेवलप किया कि ऑब्जर्व हम बिहेवियर्स करते हैं, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस होती है कि हम कैसे एक्ट करेंगे, बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करती है कि वो बिहेवियर रिवॉर्ड किया जा रहा है या पनिश किया जा रहा है, ठीक है? आई होप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज क्लियर। नेक्स्ट अप वी हैव कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग फोकस करती है कि हमें क्या पता है इंस्टेड ऑफ हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ठीक है? इसको हम 2 उसमें समझते हैं। एक फर्स्ट थी, ये टाइप्स है इसके। फर्स्ट था इनसाइट लर्निंग, जिसमें कॉलर ने चिंपैंजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, और दूसरा था लेटेंट लर्निंग, जिसमें टॉलमन ने एक रैट और मेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों एक्सपेरिमेंट्स वो समझते हैं सिंपल है। कॉलर ने क्या करा, चिंपैंजीज को एक क्लोज प्ले एरिया में रखा और वहां पे ऐसे बॉक्सेस वगैरह पड़े थे और एक हाइट पे उसने बनानास हैंग कर दिए, ठीक है? तो थोड़ी देर उन्होंने, मतलब ऐसे चिंपैंजीज को खाना था तो वो ट्राई कर रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था, वो बैठ जा रहे थे। फिर उनको ऐसे इवेंचुअली वो कोई चिंपैंजी बॉक्स पे चढ़ के
वो बनानाज लेने की कोशिश कर रहा था, कोई वो एक उन्होंने पोल रखा हुआ था उस प्ले एरिया में, उससे लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी नॉलेज या हम जो सोल्यूशंस होते हैं वो हमें फ्लैशेस में ऐसे इमीडिएटली हमें अकर करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे सडनली क्लियर हो जाता है। ठीक, इनसाइट लर्निंग को थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में और तुम पढ़ के गए हो वो क्वेश्चन, बट तुम्हें आंसर याद नहीं आ रहा है उसका, तो तुम उस क्वेश्चन को देखते रहोगे कि नो मैंने पढ़ा है, तो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है वो कभी कभी क्या होता है एकदम एक सडन फ्लैश में हमें कि ओ अच्छा ये था आंसर, मैं 10 मिनट से सोच रही थी, राइट। तो जो सडन फ्लैश में एकदम से जो सोल्यूशन हमें प्रॉब्लम का अकर होता है, या हम कभी कभी कोई मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, एक ही स्टेप पे आके बार बार अगर हम अटक जाते हैं तो फिर एकदम सडन फ्लैश में कि ओ यहाँ पे मुझे ये मेथड की जगह ये मेथड यूज करना चाहिए था, तो वो जो सडन फ्लैश ऑफ नॉलेज आ रहा है, जो वो इंस्टेंट हमें एकदम से सोल्यूशन मिल रहा है किसी चीज का, वो इनसाइट लर्निंग होती है। दूसरा है टॉलमैन का लेटेंट लर्निंग। टॉलमैन ने क्या किया, एक मेज में जो रैट को छोड़ा उसमें उन्होंने देखा कि मतलब वो रैट को छोड़ दिया कि तुम एक्सप्लोर करके निकलो, और मेज के दूसरे साइड जहाँ पे वो रास्ता मतलब उससे पजल से निकलने का था वहां पे खाना था, और दूसरे वाले रैट को भी छोड़ा लेकिन दूसरे एंड पे खाना नहीं था। ठीक है, तो जो फर्स्ट रैट था उसने ये बिहेवियर सीख लिया, अब उसको जब भी मेज पे छोड़ा जा रहा है वो मतलब भाग भाग के ऐसे क्रॉस कर रहा है बार बार मेज को, अब उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसको एक बार मिल गया तो वो जल्दी जल्दी कर रहा है। लेकिन सेकंड वाला जो रैट है जिसको हमने रिवॉर्ड नहीं करा एंड में, वो नहीं कर रहा, उसको पता है कि उस मेज को कैसे क्रॉस करना है, उसके दिमाग में ऐसा मतलब एक कॉग्निटिव मैप है, लेकिन वो कर नहीं रहा है क्योंकि उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। तो टॉलमैन क्या बोल रहे हैं, एक न्यू बिहेवियर लर्न तो करा उस रैट ने, लेकिन वो उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा, कि वो एक बार एक्सप्लोर करके गया उसको खाना नहीं मिला तो अब वो अगली बार नहीं कर रहा एक्सप्लोर, वो बैठा है आराम से, ठीक है, या वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उसने एक नया बिहेवियर लर्न करा, राइट। उसको अब वो कॉग्निटिव मैप है, उसको उस मेज का रास्ता पता है, लेकिन वो उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कोई रिवॉर्ड या कुछ एंड में कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा। तो ये लेटेंट लर्निंग थी जो टॉलमैन ने समझाया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव वर्बल लर्निंग, जो काफी बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और वर्बल लर्निंग इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दिस इज लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, तो कोई और ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में वर्बल लर्निंग नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ड्स के थ्रू हो रही है ना, तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही लिमिटेड है। मेथड्स होते हैं कि वर्बल लर्निंग होती कैसे कैसे है। पहला होता है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में क्या होता है, ये भी नॉनसेंस सिलेबल, मान लो मैंने लिख दिया डेक्स, ठीक है, डेक्स इज नॉट अ वर्ड, उसको पेयर कर दिया विद दैम, लेट्स सपोज, मतलब मैं बहुत रैंडम वर्ड्स ले रही हूँ अभी। तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में क्या होगा, दिस इज स्टिमुलस, दिस इज रिस्पॉन्स, तो पार्टिसिपेंट को ऐसे कुछ 10-15 स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे दिए लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, और अब उनको जब भी ये वर्ड बोला जाएगा तो उनको ये वर्ड बोलना है, ठीक है। और ये तब तक रिपीट होगा जब तक, अगर उन्हें ऐसे 10 पेयर्स दिए गए, 10 के 10 ठीक नहीं आते, ये तब तक रिपीट होगा। जो पार्टिसिपेंट है बेसिकली वो रिकॉल करने की कोशिश करेगा ना, जब भी उसको डेक्स बोलेंगे वो सोचेगा ओके डेक्स के साथ कौन सा वर्ड था, और प्रोबेबली जब वो लर्न कर रहा था तो वो भी ऐसे ही लर्न कर रहा होगा कि डेक्स एग्जाम डेक्स, तो वो ऐसे साथ साथ करके लर्न कर रहा होगा। मेजर कैसे करते हैं पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लगे उस स्टेज पे पहुंचने में जहां एक भी मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। तो सपोज मैंने 10 पेयर्स दिए, पहली बारी में 6 ठीक थे, फिर 8 ठीक आए, फिर 7 ठीक आए, अगली बारी में 9 ठीक आए, फिर लास्ट में 10 के 10 ठीक आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इज द मेजर ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग हियर। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है सीरियल लर्निंग, कि एक लिस्ट दी गई है और उसको सेम सीरियल में याद रखना है। दिस इज द टास्क फॉर द पार्टिसिपेंट और द लर्नर। सीरियल एंटिसिपेशन मेथड होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सपोज 10 वर्ड्स दिए गए, तो जो 10 वर्ड्स दिए गए और पहला वर्ड सपोज था एप्पल,
तो मैंने बोला एप्पल। अब तुम्हें इसका नेक्स्ट वर्ड मुझे बताना है। सपोज इसका नेक्स्ट वर्ड दिया गया होगा जिराफ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मान लो मैंने एप्पल बोला, तुम्हें जिराफ नहीं याद आया, तो ये पहले स्टिमुलस था और ये तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए था, राइट। पर तुम्हें ये नहीं याद आया, तो मैंने बता दिया अच्छा नेक्स्ट वर्ड है जिराफ, तो ये स्टिमुलस बन गया। फिर अब तुम्हें नेक्स्ट वर्ड जो था वो गेस करना है, वो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा। अगर तुम ये भी गेस नहीं कर पाए, मैं एक और वर्ड बता दूंगी जो स्टिमुलस होगा, फिर मतलब ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस बन जाएगा। तो बेसिकली दिस मेथड की जब हम नेक्स्ट वर्ड बताए जा रहे हैं और रिस्पॉन्स स्टिमुलस बन जाता है ताकि आप अगला वर्ड रिस्पॉन्स में बताओ, इसको सीरियल एंटिसिपेशन मेथड बोलते हैं, जो हम काफी करते हैं। ओरल टेस्ट के टाइम हमने बचपन में किया है कि मम्मी एक वर्ड बता दो, बस फिर पूरा आंसर बता देंगे, क्योंकि हमने रटा होता है तो हमें सीरियल में याद होता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, राइट। फिर आता है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल में कुछ नहीं है, वर्ड्स दे दिए गए हैं, मतलब वर्ड्स पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दिए गए हैं और बोला है कि किसी भी ऑर्डर में उनको याद करो। अब किसी भी ऑर्डर में याद करने जब पूछा गया फिर कि सारे वर्ड्स बताओ, तो जनरली ये होता है कि जो स्टार्टिंग में वर्ड्स बताए गए या दिखाए गए और जो एंड में जिनका एक्सपोजर दिया गया वो याद रहते हैं और बीच के जनरली लोग भूल जाते हैं। सो ऐसा फ्री रिकॉल में है, ठीक है। इसके बाद है किन चीजों से डिटरमाइन होगी कि वर्बल लर्निंग कितनी इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहला तो लेंथ ऑफ द लिस्ट, कि कितनी लंबी लिस्ट है, राइट। जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होगे उतना ज्यादा लर्न करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, उतने ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे जब हम उसको टेस्ट करेंगे। फिर मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, कि कितना फेमिलियर मटेरियल है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या सीक्वेंशियल डिपेंडेंस है। ऐसे एप्पल इज द फर्स्ट वर्ड, मैंगो इज द सेकेंड वर्ड, बनाना इज द थर्ड वर्ड। तो इट इज लाइकली ना कि तुम ये लिस्ट ज्यादा इजीली याद रख लोगे अगर इसमें 10-15 भी वर्ड्स में लिख दो, क्योंकि एक सीक्वेंशियल डिपेंडेंस है और कुछ एक ही कैटेगरी के हैं, सिमिलर हैं, फ्रूट्स हैं सारे, राइट। या फिर ऑफ कोर्स नंबर कितना है और कितना फेमिलियर हो तुम। अगर मैं किसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को एक लिस्ट दे दूं ऑफ साइकोलॉजिकल टर्म्स, तो उनको थोड़ा शायद टाइम लगे वो वर्ड्स को याद रखने में, राइट। मैं तुम्हें दूंगी तो तुम ज्यादा इजीली याद रख पाओगे। तो कितना तुम फेमिलियर हो, क्या उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन है, कितनी सीक्वेंशियल डिपेंडेंस है, इन सब पे भी डिपेंड करेगा वर्बल लर्निंग कैसी हो रही है। फिर बोसफील्ड ने एक कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग बताया। कैटेगरी क्लस्टरिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर मैं तुम्हें 20 वर्ड्स दे दूं, 5 फ्रॉम ईच कैटेगरी, सी 5 लोगों के नाम बता दूं, 5 फ्रूट्स के नाम बता दूं, 5 जगहों के नाम बता दूं और 5 प्रोफेशंस बता दूं अगर, ठीक है। और मैंने ये सब जम्बल्ड बताया तुम्हें, तो जब तुम रिकॉल करोगे तो इट इज लाइकली कि अगर तुमने पहले प्रोफेशन सोचने स्टार्ट करे तो पूरे 20 वर्ड में से तुम पहले 5 प्रोफेशन पिक करके बता दोगे, चाहे मैंने वो किसी भी ऑर्डर में तुम्हें बताया हो। फिर तुम नेम्स पे आए तो तुम पहले सारे नेम्स पिक कर लोगे। तो ये कैटेगरी क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि वर्बल लर्निंग जो है वो इंटेंशनल भी होती है और इंसिडेंटल भी होती है। इंटेंशनल का तो अभी हमने पढ़ा क्या मेथड्स हैं, हम कैसे करते हैं, जो लर्निंग हम एक्चुअली करते हैं। और इंसिडेंटल मतलब जो एक्सीडेंटल होती है, एक्ट वगैरह जब होती है तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स याद हो जाते हैं ना, जैसे ये बुक वुक यहाँ से उठा दो सब। सो बुक इज नॉट अ वर्ड बट वी रिमेम्बर इट, वी लर्न इट बुक के साथ बोलने के लिए। तो कुछ कुछ लर्निंग ऐसी इंसिडेंटल भी होती है कि कुछ राइम कर रहा है कुछ ऐसा। तो वर्बल लर्निंग इंटेंशनल भी हो सकती है और इंसिडेंटल भी हो सकती है। आई होप क्लियर था। इफ इट वॉज टू फास्ट फॉर यू तो एक बारी वापस देख लो रिवाइंड करके, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग विच इज स्किल लर्निंग। इसके बाद बस हमारे 1-2 टॉपिक ही बचेंगे। तो स्किल लर्निंग मतलब स्किल समझते हैं। स्किल होती है हमारी एबिलिटी की हम कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क कितना स्मूथली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। कि अगर मैंने ड्राइविंग सीखी सो ड्राइविंग इज अ स्किल, स्विमिंग इज अ स्किल, साइकिलिंग इज अ स्किल, टीचिंग इज अ स्किल। मैं कितना स्मूथली उसको कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें एक्सपीरियंस है या मैंने उसमें प्रैक्टिस करी है, वो मेरी स्किल है। जैसे जैसे हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी टाइम कम लगेगा चीजों में, है ना। तो मोर द प्रैक्टिस लेसर द टाइम। जितनी ज्यादा हमें एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा वो स्किल, वो लर्निंग हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी, ज्यादा एफर्टलेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप
कोई नए रास्ते पे फर्स्ट टाइम गूगल मैप्स फॉलो करके गए हो तो आपको 2-3 बार मैप्स फॉलो करना पड़ेगा, बट फोर्थ टाइम वो एफर्ट ले, आप फोन पे बात करते करते ऐसे चले जाओगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। फिट्स ने स्किल एक्विजिशन के फेजेस बताए। पहला होता है कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज मतलब, और ये भी देखना तुम कि कंट्रोल प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक, कि यहाँ पे तुम बहुत कंट्रोल, तुम्हें कॉग्निटिव स्टेज में बहुत अटेंशन देनी पड़ती है कि तुम जैसे जब ड्राइविंग सीखते हो तो बहुत ध्यान से ना कि कौन सा गियर कब डालना है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर है, क्या स्टीयरिंग व्हील कैसे ऑपरेट करना है, पैरेलल पार्क कैसे, तो तुम बहुत अटेंशन देके बहुत एफर्ट डालते हो, है ना। उसके बाद आती है एसोसिएटिव स्टेज, जो हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं जब, क्योंकि कॉग्निटिव फेज में हमारे सेंसरी इनपुट्स बहुत एक्टिव होते हैं ना, कि कोई जो हमें सिखा रहा है हम उसकी बात ध्यान से सुने, आसपास बहुत अटेंशन देते हैं हम ड्राइव करते हुए, कि अभी सीख रहे हैं, कहीं पे लग ना जाए कार, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, राइट। तो एसोसिएटिव स्टेज में ये चीजें थोड़ी सी कम होती है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है एरर कम होते जाते हैं, टाइम भी कम होता जाता है और परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है हमारी। तो इस स्टेज में भी हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। फिर लास्ट आती है हमारी थर्ड स्टेज, ये इस ऑर्डर में है थर्ड स्टेज, विच इज ऑटोनॉमस। अब यहाँ पे हमें मिनिमल अटेंशन देने की जरूरत है, मिनिमल कंसंट्रेशन की, एक ऑटोमेटिसिटी आ जाती है, राइट। अटेंशनल डिमांड कम हो जाती है और हम ऑटोमेटिकली वो चीज करने लगते हैं। तो ये 3 फेजेस में हम स्किल्ड होते हैं जब। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है किन फैक्टर्स से लर्निंग फैसिलिटेट होती है। तो कॉन्टिन्यूस और पार्शियल रीइंफोर्समेंट हम काफी बार पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। रीइंफोर्समेंट में जो भी हमारे कंडीशनड रिस्पॉन्सेज आते हैं वो इतने हम अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं कि वी आर रेजिस्टेंट टू फॉरगेट दोज, वो एक्सटिंक्ट नहीं होते रिस्पॉन्सेज जल्दी से, तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उस चीज की। दैट इज नथिंग बट पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट, ठीक है। फिर मोटिवेशन एक फैक्टर है कि हम लर्न करने के लिए या तो अंदर से मोटिवेटेड होंगे कि तुम्हें कोई चीज इंट्रिंसिक इंटरनल कि मुझे सीखनी है ये चीज एनी हाउ, या एक्सट्रिंसिक होंगे कि आई वांट टू लर्न टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल बिकॉज एवरीबडी हैज पिन पॉइंटेड माई बॉडी और एवरीबडी हैज पिन पॉइंटेड अ पर्टिकुलर थिंग, या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर तुम्हें आ रहा है। फैक्टर है लर्निंग के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड है जेनेटिकली। हर स्पीशीज हर कुछ लर्न नहीं कर सकती, कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है आपके जीन्स में, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज अगर आपके जीन्स में नहीं है तो आप सीख ही नहीं सकते। आपको ज्यादा एफर्ट लगेगा, आपको ज्यादा ट्रायल लगेगा, आप सीख सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो लर्निंग के लिए जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो आपके जीन्स से इन्फ्लुएंस होती है, वो आपका जेनेटिकली जो मटेरियल प्रेजेंट होगा आप उसको पॉलिश करते हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि पोटेंशियल होता है, आप उसको एक्सप्लोर करते हो। फिर बस लास्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड इट्स सिम्टम्स। ऑलराइट, लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत कुछ चीजें आती हैं। अब राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मैथमेटिकल चीजें करने, इन सब में प्रॉब्लम आती है। और जो ADHD वाले बच्चे होते हैं या फिर उनको अगर और भी कोई अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, उनका स्पेस ओरिएंटेशन बहुत बार मतलब खराब होता है, उनको टाइम, सेंस ऑफ टाइम कम होता है, उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन कम होती है, मतलब फ्रॉम अ लर्निंग डिसेबिलिटी हैव poor manual dexterity, poor motor coordination, they are not able to have control, they don't have much control over how they are sitting, how they are using their hands and how they are using their fingers. Then perceptual disorders or dyslexic you guys know कि वो mirror imaging होता है, and a very prominent example is तारे ज़मीन पर movie. So learning disabilities inherent होती है बच्चों में mostly, and it is identified कि mostly central nervous system which consists of your brain and your spinal cord, उसमें कुछ problems होने की वजह से learning disabilities occur होती हैं। कुछ set of hormones ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से भी होती हैं। Alright,
वी हैव टॉक्ड अबाउट सिम्टम्स ऑल्सो. वन थिंग टू नोट हेयर इज कि इनक्योरेबल नहीं होती. लर्निंग डिसेबिलिटीज को ठीक किया जा सकता है अगर हम अच्छे टीचिंग मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम अच्छे रेमेडियल मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं इन ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज को क्योर किया जा सकता है. So that is it for this video. I hope you liked the lecture, you learned something from it. If you have any doubts, the comment section is open. If you want to get this PPT, it is linked in the description box of this video. You can buy handwritten notes, you can enroll for live classes with me. All those links, connect with me on Instagram, on LinkedIn, everything is in the description. And I'll see you next time with the next chapter. Until then, bye bye and take care.